A very good afternoon, everyone. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 10, and we are reading Chapter 3, that is Metals and Non-Metals. Okay, and we have already completed 8 parts of this particular chapter, and this is the ninth part where we'll be discussing question and answer. ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स अलग अलग जगह से डिस्कस करेंगे, मतलब एनसीईआरटी का नहीं है, हर जगह से है, ठीक है, ऑल इन ऑल किताब से एंड ठीक है, तो शुरू करेंगे, ठीक है. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow, so don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so let's start the session. तो आज हम सिंपल क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ऑफिशियली रैप करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, right here. So this is your NCERT question. Okay, give an example of a metal which is liquid at room temperature, which can be cut easily with a knife, is the best conductor of heat, and is a poor conductor of heat. You have to give one example of each of the metals of this particular question. Okay, so पहले बताओ, इज अ लिक्विड, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में? बताओ, किसी को पता है? इट्स मर्क्यूरी. ओके, द आंसर इज मर्क्यूरी. नाउ कैन वी इजीली कट विद अ नाइफ? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस क्वेश्चन, सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आता हो. ठीक है, ये वाला है आपका पर्टिकुलर सोडियम, और तीसरा वाला सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, एंड द फोर्थ वन इज मर्क्यूरी एंड लीड. ठीक है, फाइन, समझ आ गया. पहला वाला, give an example of a metal which is liquid at room temperature is mercury, can be easily cut with a knife is sodium, is the best conductor of heat is silver, and poor conductor जो है mercury and lead है. ठीक है, got it? Great. Next. Okay, this one. Explain the meanings of malleable and ductile. Malleable है, malleable. Okay. Malleable का मतलब क्या बताओ? The substances which can be beaten into thin sheets, उसको हम malleability property बोलते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बता सकते हो. सारा मोस्टली malleable है, कॉपर, ठीक है, सिल्वर एंड ऑल. डक्टाइल, they can be drawn into wires, ठीक है, उसको डक्टाइल बोला जाता है. एग्जाम्पल, aluminium. Now why sodium kept immersed in kerosene oil? आपको ऑलरेडी पता है कि सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव सीरीज में आता है, तो being very reactive they can easily react with that of atmospheric oxygen and burn spontaneously. ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब वो एयर के साथ या वाटर के साथ, एटमॉस्फेरिक एयर वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो अचानक से जल जाएंगे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं. What is the answer? How will be writing it? Sodium and potassium are very reactive metals and combine explosively. Explode हो जाता है एकदम with air as well as water. Hence they catch fire if kept in open. Therefore, to prevent accidental fires and accidents, sodium is stored in kerosene oil. Okay, समझ गए? Great. Next. Why does metal not release H2 gas on reacting with dilute nitric acid? ठीक है, जो मेटल है वो H2 गैस क्यों रिलीज नहीं करता जब वो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ. मेटल एक पकड़ लो, कोई भी मेटल, ठीक है, सोडियम ले लो, Na को हम रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ. व्हाट विल बी द रिएक्शन? यहाँ पे H2 रिलीज होगा क्या? H2, हम कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ, हम either we are taking H2SO4 or HCl. We are not taking HNO3 in any of the reaction. What is the reason? बताओ. Anybody who knows this answer? Whenever we are reacting a metal with that of HNO3, we are not getting H2. Even we are not reacting. हमने इतने सारे questions किए होंगे अब तक किसी में भी हम HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं. हम उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं या फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. हम उसको HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं. क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि HNO3 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, N2 बना देगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसको फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, डाइऑक्साइड बन जाता है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है,
कि इससे जो है H2 गैस रिलीज नहीं होगा. तो being a very strong oxidizing agent, it is not used in the reaction with that of your metals. Now how you will be writing it? As nitric acid acts as a strong oxidizing agent or oxidizes the released H2 gas to H2O, convert कर देगा water में, and itself will get reduced either of these gases to nitric oxide, nitrogen oxide or nitrogen trioxide, nitrogen monoxide. That's why हम इसको नहीं कराते. Only sole reason is that it is a very strong oxidizing agent. Got it? Okay. Why is copper used to make hot water tanks whereas steel is not? बिल्कुल सही बात है. कॉपर हॉट वाटर टैंक्स में यूज होता है, पर स्टील को हम यूज नहीं करते. उसका क्या रीजन है बताओ. कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है. इट कैन कंडक्ट वेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, स्टील से. दैट इज द सोल रीजन, नथिंग एल्स. कॉपर ही हॉट वाटर टैंक जो यूज होता है उसमें कॉपर यूज होता है क्योंकि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर करके रख सकता है, बट स्टील नहीं कर सकता है. दैट्स व्हाई कॉपर इज यूज्ड. Copper is a better conductor of heat as compared to steel. Therefore, hot water tanks are made up of copper. Got it? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. It's easy. Next is, why do the non-metals not displace hydrogen from dilute acids? ठीक है, जो भी नॉन मेटल्स हैं जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब जो है जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं करता बताओ. क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दोज आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं वो लिक्विड में वहाँ से एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मेटल्स बीइंग एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल्स इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो बस एक्सेप्टेंस पावर है उसकी, वो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता है. नहीं देगा तो हाइड्रोजन नहीं बनेगा. ठीक है, और इसीलिए वो यूज नहीं होता. सिंपल. कैसे लिखेंगे, नॉन मेटल्स बीइंग एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड्स टू रिड्यूस देम to hydrogen gas. Hence, non-metals do not displace hydrogen from dilute acids. Got it? Okay. If you have got any doubt regarding this, you can ask me. Okay, next. Okay. Reverse of the following chemical equation is not possible. Justify the statement with a reason. आंसर क्या बताओ, क्या रिएक्शन है पहले देखो. जिंक सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं CuSO4 एक्वेस के साथ, तो हमें मिलता है ZnSO4 जो एक्वेस है प्लस कॉपर जो सॉलिड है. अब हम इसका रिवर्स नहीं कर सकते, यानी ZnSO4 एक्वेस प्लस Cu गिव राइज टू Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वेस सॉल्यूशन. व्हाई रिवर्स इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस? कैन एनीबॉडी आंसर? बताओ. देयर विल बी नो रिएक्शन. अगर हम लोग ZnSO4 और Cu को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें Zn और CuSO4 नहीं मिलेगा. उसका क्या रीज़न है बताओ. क्योंकि Cu जो है हमें क्या देखना है, हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखना है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई लेवल वाला जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा. अब जिंक वहाँ पे हाई रिएक्टिव है, दैट्स वाई जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो वो ZnSO4 और Cu बन गया. पर जब Cu और ZnSO4 को रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे Cu ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो ZnSO4 को ZnSO4 रहेगा और Cu को Cu रहेगा. पर एट द सेम टाइम Zn और CuSO4 में क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है तब वो Cu की जगह ले लेता है, पर यहाँ पे Cu नहीं है ना. दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल. Now how you will be writing it? Because Cu is less reactive than zinc, यानी copper is less reactive than zinc in the activity series. Therefore, less reactive metal, that is copper, does not displace more reactive metal zinc from its salt solution. Thus, the reaction is not possible. Okay, concepts are clear. अगर किसी को भी कोई डाउट है, they can easily ask me. Okay, I'll be answering the questions. आप comment section में लिख सकते हो, मैं आंसर बता दूँगी. Next, define the term metallurgy and fill appropriate terms in the blanks. ये 2013 का क्वेश्चन है. मेटलर्जी किसको बोला जाता है? मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन के जो प्रोसेस है उनको मेटलर्जी बोला जाता है. The various processes involved in the extraction of metals from their ores and then refining them or their refining are known as metallurgy. तो जो भी वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स में और उसको फिर रिफाइन किया जाता है, उसी को हमने नाम दिया है मेटलर्जी.
ठीक है। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक से 4 पर्टिकुलर मेजर स्टेप्स होते हैं मेटलर्जी में, हमने पढ़ा है। अब हम उसके 4 स्टेप्स को जानेंगे। डैश ऑफ ओर, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड में कन्वर्जन ऑफ द ओर टू इट्स metal oxide. Third is reduction of the oxides of ores into metal. And the fourth is refining of impure metal. यानी मेटलर्जी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, मेटलर्जी क्या है और उसके 4 स्टेप्स क्या है। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द वेरियस प्रोसेसेस एंड then refining them is metallurgy. First is concentration of the ore, second is conversion of ore into metal oxides, फिर reduction of oxides to metal, and the fourth one is refining or purification of metal. Okay. You must know this question's answer. This is the most asked one. Next, state the reason. First, lemon is used for restoring the shine of tarnished copper vessels. ये तो तुमने देखा होगा, जब हमारी मम्मियाँ होती हैं, वो जो कॉपर जब वो गंदा हो गया होता है ना, टार्निश हो गया होता है, तो उसको क्या करते हैं, जो कॉपर को शाइन लाने के लिए उसको लेमन से वो स्क्विंग्स करके उसका शाइन आता है। वो शाइन कैसे आता है, क्यों आता है? चलो जानते हैं। When a copper object remains in damp air for a considerable time, then copper reacts slowly with carbon dioxide and water in the form to form a green coating of basic copper carbonate on its surface. तो कॉपर जब भी पर्टिकुलर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम वो यूज़ नहीं करते, बस पूजा पाठ में कभी कभार यूज़ होता है, तो बहुत टाइम जब जब हम छोड़ देते हैं उसको वैसे, तो मॉइस्चर एयर है, ठीक है, एयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सब मिल जाएगा। जब एयर वाटर के साथ वो कंबाइन कर लेता है, तब वो एक ग्रीन कोटिंग फॉर्म कर लेता है और इस ग्रीन कोटिंग का नाम है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ corroded copper vessels are treated with lemon which is acidic in nature। अब पता है हमें लेमन जो होता है वो acidic in nature है, तो when these particular lemon being acidic in nature reacted with that of the calcium copper carbonate, तो क्या होता है, एसिड डिसॉल्व कर देगा पर्टिकुलर कॉपर कार्बोनेट और शाइन हो जाएगा। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ हाउ इट इज बीइंग डन। यानी कॉपर जब बहुत टाइम आप कॉपर वेसल्स को छोड़ दो तो वो रिएक्ट करेगा एयर वाटर के साथ और एक ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। इसी को जब हम लेमन जो कि एसिडिक है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिड के साथ वो कॉपर कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है और वो शाइन वापस आ जाती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a metal sulfide is converted to its oxide to extract the metal from sulfide ore। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ईजियर होता है एक्सट्रैक्शन करने में अगर आप कन्वर्ट कर दो ऑक्साइड्स को। ठीक है। सो इट इज easier to obtain metals from the oxides and from sulfides, so before reduction the metal sulfide ore is converted into metal oxide। सिंपली हमने पढ़ा है उसको। ठीक है। कॉपर वाइज है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। क्यों? बहुत अच्छा कंडक्टर है। कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल सबसे ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव मतलब कंडक्शन ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी करता है, देन कम्स कॉपर। So electric wires are made up of copper. Isilver being very costly. ठीक है, that is the reason. Now, what is the last question? Or I have another one. Okay, last one. Last वाला देखेंगे क्या है, देखो। Explain any two physical properties of ionic compounds given reasons। ठीक है, दो particular property बताओ ionic compounds के। Ionic compounds are usually crystalline solids because their oppositely charged ions attract together and form a क्या, रेगुलर क्रिस्टल सीट। तो यहाँ पे जो होता है आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, डोंट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से आराम से डिजोल्व हो जाता है। जो भी आप पर्टिकुलर डिजोल्विंग स्टेट में जब भी होता है उसमें बहुत अच्छा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आयंस डिसॉल्व अच्छा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आराम से ब्रेक हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, एवरीथिंग कैन हैपन। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? Ionic compounds have high melting and high boiling points. The ionic compounds are made up of positive and negative ions. There is a strong force of attraction between the oppositively charged ions, so a lot of heat energy is required to break this force of attraction and melt or boil the ionic compounds. Okay. Now list any two metals found in free state in Earth's crust. Where are they located in activity series? फ्री स्टेट में कौन है? जब सबसे लोअर रिएक्टिविटी वाले फ्री में होता है, जैसे कि गोल्ड प्लैटिनम ये सब। ठीक है। Gold and platinum metals are found in free state in Earth's crust. These metals are located at bottom of activity series. Okay.
Next, metals towards the top of the activity series cannot be obtained from the compounds by reducing the carbon. क्यों बताओ? मेटल क्यों नहीं कर सकते? हमने अभी अभी पढ़ा कि हम टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हो ही नहीं सकता है. ठीक है. Metals towards the top of the activity series are highly reactive. The oxides of highly reactive metals are very stable and cannot be reduced by carbon to obtain free metals because these have more affinity to oxygen than carbon. क्योंकि बहुत ज़्यादा strong होती है, reactive होती है, इसलिए हम reduce नहीं कर सकते. हमें क्या करना है? Electrolytic reduction. Simple. चलो, तो आई होप ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. मेरे को लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ये चैप्टर रिलेटेड सब. ठीक है. अगर मैं किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. एंड अगर आपने वीडियो पहली बार देखा नहीं है कभी, तो यू मे गो टू द प्लेलिस्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन चेक इट आउट all the videos that are available of the particular chapter one after the other to have a check and to have a look, and then you can watch all the videos in successive way. ठीक है, वन आफ्टर द अदर. तो ये 9th पार्ट था और हियर आर चैप्टर एंड्स. ठीक है. सो ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक है. ये 3rd चैप्टर था जो हमने ख़त्म कर दिया है. सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा. तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. ये क्वेश्चन आंसर सेशन था. तो नेक्स्ट टाइम विल बी मीटिंग विद अ न्यू चैप्टर. ऑलराइट. So I'll be seeing you in the next class with a new chapter. So until then, take care, have a good day, keep smiling, and if you have any doubt, let me know. Alright? Till then, keep smiling. Bye.